Okay. Now, next is basic components of computer system. So these are the basic definition and basic terms. And now basic components of computer system, we know that input output units, memory, CPU, and ALU registers and control unit. So this is the architecture one human diagram or basic components of computer system architectures. So these are the diagram. This is a diagram. You can see that this is the input output unit, this is memory which contains data and instruction, and this is control processing unit. Control processing unit also have a three components like arithmetical logic unit, ALU, registers, and control unit. So how the computer or how the CPU will work, what is the how its internal structure is working, how the information are flow and process. So these are the basic components. Through these we process the data or information in the CPU and they are work together. So the first component is input unit. So input unit is nothing. It consists of some basic components that accept data and instruction and program or information in some form and convert them into an internal form of signals which is usable by the system. ठीक है. तो आपका इनपुट यूनिट क्या हो सकता है, कोई भी आपका बेसिक कंपोनेंट्स होता है जो एक्सेप्ट करता है डेटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, जिसको वो एक्सेप्ट करता है एंड क्या करता है, इनपुट कराता है. ठीक है. जैसे फॉर एन एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स, इन सब के थ्रू आप क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं. सपोज आपने डेस्कटॉप देखा है या डेस्कटॉप देखा है तो आपके पास क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है एंड एक सीपीयू होता है और मॉनिटर स्क्रीन होती है. तो आप क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू आपको जो भी इनपुट कराना रहता है आपने वो इनपुट कराया एंड आउटपुट आपको कहाँ दिखता है, मॉनिटर स्क्रीन में आपको आपका आउटपुट शो होता है. ठीक है. सो आउटपुट यूनिट क्या होती है, इट सर्व एज अ मीडियम फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट वॉट एवर वी आर गिवन बाय द इनपुट यूनिट. ठीक है. सो आउटपुट यूनिट like monitor, printer, plotter, etc. So these are the input output unit. These input output units are connected to the CPU. Okay. So first of all, any information or data or instruction given by the input unit, it gives to the memory and store the data and instruction and program or any form of information which is given by the input unit. ठीक है. जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम हम लोगों ने इनपुट यूनिट के थ्रू दिया है, सबसे पहले वो कहाँ पर आपका स्टोर होगा, मेमोरी में. मेमोरी क्या होता है, इट इज अ स्पेस वेयर वी स्टोर द इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा. ठीक है. जहाँ पर हम लोग डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन जो हमारा किसी भी फॉर्म में है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं. ठीक है. बेसिकली मेमोरी हमारी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट, अब हमने जो भी इनपुट कराया वो हमारा डेटा कहाँ पर आया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आया, मेमोरी में आकर स्टोर हो गया. नेक्स्ट अब क्या होगा, अब हमारा जो है मेन सीपीयू का वर्क स्टार्ट होगा. सीपीयू कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, सीपीयू को जो भी हमारे पास मेमोरी इंफॉर्मेशन है सीपीयू के पास वो फैच करेगा. सीपीयू में वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी मेमोरी से. ठीक है. अब बेसिकली सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. It works as a administrative of a system and it control all internal and external devices. It also perform arithmetic and logic operations. It control the memory uses and it also control the sequence of operations which is performing. Okay. And CPU contain three basic components: ALU, registers, and control unit. Okay. The first part is first component is ALU, arithmetic logic unit. Okay. So what is ALU? So ALU perform the required micro operation for executing the instructions. ठीक है. जो भी हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म होता, ऑपरेशंस जो भी होते हैं
उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। इट अलाउ अरिथमेटिक, ALU allow arithmetic operation and logical operation. Arithmetic operation is addition, multiplication, division, etc. And logical operation is and, or, not, shift, etc. तो ये जो भी आपके ऑपरेशन जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म होंगे वो किसके थ्रू परफॉर्म होंगे, ALU के थ्रू। नेक्स्ट इज रजिस्टर। व्हाट इज रजिस्टर्स? सो registers are very fast computer memory which are used to program and operations very efficiently, ठीक है। एंड इट स्टोर टेम्पररी डेटा। बेसिकली जब हमारे पास एक मेमोरी ऑलरेडी स्टोर्ड है जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर हो रहा है, तो वाई वी रिक्वायर्ड रजिस्टर्स एंड वाई वी आर यूजिंग रजिस्टर्स इन CPU। ओके, क्यों यूज कर रहे हैं? जब हमारे पास ऑलरेडी एक मेमोरी है, मेन मेमोरी है जिसमें हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया है, फिर हम लोग रजिस्टर का यूज क्यों कर रहे हैं? किसी को पता है क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग रजिस्टर को? किसी को भी पता है? आइडिया है किसी को? ओके, रजिस्टर्स मेमोरी आर वेरी फास्ट मेमोरी होती हैं एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा हमारा इसमें रजिस्टर्स में हम लोग एक्चुअली टेम्पररी वेरिएबल्स या टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं और इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और बहुत इजीली हम इसे एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा अरिथमेटिक, सपोज कोई हम लोगों ने यहाँ से इनपुट कराया, हमें कोई सपोज एडिशन कराना है, ठीक है, हम लोगों ने कोई नंबर्स को इनपुट कराया, यहाँ पर इनपुट कराया, हमने इंस्ट्रक्शन दी कि हमें A+B का एडिशन कराना है या A+D का सब्ट्रैक्शन कराना है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में आया, CPU में आया, CPU के बाद कहाँ जाएगा, ALU में जाएगा। ALU में क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन का, ठीक है। एडिशन कराया उसने एंड जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, आपका रजिस्टर्स में स्टोर होगा, क्योंकि टेम्पररी जो भी हमारा रिजल्ट है वो हम रजिस्टर में स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर्स के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारा रिजल्ट है, वो कहाँ पर जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। सो कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम क्या होता है? ओके, पहले रजिस्टर्स बताती हूँ। रजिस्टर्स में हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमारे प्रोग्राम था और जो ऑपरेशन था वो एग्जीक्यूट हो गया और स्टोर हो गया। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने रजिस्टर लिखा है, बट आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर अवेलेबल, like memory address register, memory data register, general purpose register, program counter, accumulator, indirect register, and many more registers are available, ठीक है। And one more thing is that we can store sequence of bit in registers also, ठीक है। सपोज कोई डेटा कोई हमने जो इनपुट कराया है, कोई वेरिएबल जिसका 8 बिट का है, कोई 16 बिट का है, कोई 24 बिट का है, तो हम लोग सीक्वेंस ऑफ बिट में भी स्टोर कराते हैं रजिस्टर्स में, ठीक है। एंड अनदर वन मोर थिंग इज दैट कि हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं रजिस्टर में, ठीक है। अगर हम मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा रजिस्टर बन जाएगा, जो कि बहुत फास्ट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रजिस्टर एंड कंट्रोल सर्किट टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। क्या होता है? सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं एंड कंट्रोल सर्किट्स होते हैं। कुछ इसमें रजिस्टर्स होते हैं और सर्किट होते हैं जो जनरेट करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को, ठीक है। अब और क्या होता है कि इट ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अमंग ऑल फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का एक और मेन काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को जो फंक्शन यूनिट के बीच में होती हैं। या फंक्शनल यूनिट क्या काम करती हैं? आपको पता है कि कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन है या कुछ है तो उसके फेजेस होते हैं, फेच, डिकोड,
एंड एग्जीक्यूट। तो फंक्शनल यूनिट में क्या होगा, क्या फंक्शन करेंगे कि कोई भी हमारा कोई इंस्ट्रक्शन है वो फेच करेंगे मेमोरी से, इट फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिकोड इट, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, लाइक विच ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म थ्रू ALU। And next one is execute instruction. After decoding the and identify the operation and performing the operation, we will execute the instruction. And one more thing we can use to use in control unit is uh, timing signal, and another thing is control signal. Okay, so in control unit we have multiple, like for an example we have multiple instructions are available. Suppose we have 10 instruction, I1 to I10. ठीक है, हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस हैं. सो टाइमिंग सिग्नल्स कंट्रोल द टाइमिंग्स ऑफ सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट. ठीक है, अगर 10 हमारे पास इंस्ट्रक्शन है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन कब हमारा एग्जीक्यूट होगा, किस पर्टिकुलर टाइम में एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, हमारा टाइमिंग सिग्नल्स के थ्रू. और कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू क्या होगा कि सपोज कि कंट्रोल सिग्नल से जो हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. ठीक है, कौन सा हमारा इंस्ट्रक्शन कब हमें रीड करना है, कब हमें राइट करना है, कब हमें प्रोसेस करना है, तो ये सारी की सारी जो फंक्शंस हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होंगे, आपके कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू. तो ये हमारे ये जो हमारे सिग्नल्स हैं वो यूज होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट में. ठीक है, तो होल डायग्राम डिस्क्राइब्स दैट कि जब हम कोई भी हमने इनपुट दिया इनपुट यूनिट के थ्रू, सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा, हमारा मेमोरी में. मेमोरी में क्या होगा, हमारा जो भी हम लोगों ने डेटा दिया है वो स्टोर होगा. देन सीपीयू से वो कोऑर्डिनेट करेगा. सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर है उसे फैच करेगा. फैच करके कहाँ पर आ गया है, वो सीपीयू में आ गया है. सीपीयू में आने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, उस डेटा में ALU परफॉर्म होगा, फैच हो गया आपका. अब यहाँ पे ALU के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग डिकोड करेंगे कि डेटा क्या है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे. अगर उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग ALU के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन वी फाइंड आउट सम रिजल्ट. देन जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम कहाँ पर स्टोर कराएंगे, रजिस्टर्स में. ठीक है, रजिस्टर्स में हम लोगों ने उस डेटा को या इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने स्टोर कराया. देन क्या करेंगे, हम कंट्रोल यूनिट को प्रोसेस कराएंगे. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ जो डेटा में या इंफॉर्मेशन में या इंस्ट्रक्शन में हमें करवाना है उसे कंट्रोल करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, एंड वापस से क्या करेगा, उसे मेन मेमोरी में भेजेगा. एंड जब हमें उस रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है तो आउटपुट यूनिट का यूज़ करके हम उसे डिस्प्ले करा देंगे हमारे स्क्रीन पर. तो ये सारा का सारा इंटरनल प्रोसेस है जो कि हमारे सिस्टम में होता है, सीपीयू के अंदर होता है. ठीक है, हमें नॉर्मली क्या दिखता है कि हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया या जो भी इनपुट दिया, हमें इमीडिएट स्क्रीन पर उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है. बट इंटरनल प्रोसेस इनमें बहुत टाइम लगता है, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में लगता है कि हमने इनपुट दिया और हमारा आउटपुट आ गया. बट इंटरनल प्रोसेस होती है, सारे फेजेस से निकल में से पास होती हैं, प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है उसका. इसमें किसी को डाउट है, क्लियर है ये? Yes, ma'am. ओके, अगर कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ सम डेफिनेशन एंड टर्म्स. आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है अनम्यूट किसने किया हुआ है, प्लीज म्यूट. Okay, next topic is some definition and terms.
So some standard definition given in a book. So first one is state. What is state? So state is a particular configuration of storage. Storage it may be a register or a memory. ठीक है. So पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टोरेज के लिए कि हमें कहाँ पर हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसे स्टोर कराना है. तो वेदर वी कैन स्टोर दिस इन अ रजिस्टर और इन अ मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्टेट ट्रांजिशन. सो इट इज अ चेंज इन दैट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया है मेमोरी और रजिस्टर में किसने में स्टोर कराना है उसमें जो भी चेंज होगा वो हमारा क्या होगा, स्टेट ट्रांजिशन. नेक्स्ट वन इज साइकिल. सो साइकिल इज अ टाइम बिटवीन द स्टेट ट्रांजिशन. जो भी हम लोगों ने स्टेट में ट्रांजिशन कराए हैं उसके बीच का जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, साइकिल होगा. अब हम साइकिल को डिसाइड करें कैसे करेंगे. तो अगर हमारा स्टोरेज रजिस्टर है, इफ द स्टोरेज इज रजिस्टर, so we can say that we have machine cycle. ठीक है. if the storage is memory, so we can say that I have a memory cycle or we have a memory cycle. तो हमें रजिस्टर सबसे पहले स्टोरेज चूज करना होगा कि स्टोरेज अगर हमारा रजिस्टर है तो हमारे पास मशीन साइकिल में यूज करना है, और अगर हमारे पास मेमोरी है तो हमसे मेमोरी साइकिल यूज करना है. Now next is command. So command is a function when applied to a particular state, it will generate the next state. ठीक है. And command is also a generic term to describe the various types of instruction. ठीक है. लाइक आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट या कोई भी कमांड विंडो यूज किया होगा जहाँ पर आप कमांड देते हैं एंड उसका आउटपुट जनरेट होता है. सपोज आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट की बात करूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ भी आपने सपोज कमांड दी है, ये डायरेक्टरी ओपन करना है आपको या डायरेक्टरी चेंज करना है, चेंज डायरेक्टरी. तो सब आपने कमांड टाइप किया, देन आप क्या करते हैं, एंटर करते हैं एंड आउटपुट आपका क्या होता है कि चेंज डायरेक्टरी जो भी होती है वो आपकी कमांड रन होती है, देन आपको आउटपुट मिलता है. तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्टेट मीन्स आपने एक पर्टिकुलर स्टेट पर उसको कमांड दिया एंड आपको उसका नेक्स्ट स्टेट मीन्स आपको उसका आउटपुट मिल गया. ठीक है. ये होता है आपका कमांड. एंड नेक्स्ट है आपका प्रोसेस. What is process? So process is a sequence of commands and initial state. For example, in a process we apply to an initial state and it generate a final state. ठीक है. अभी हम कमांड में क्या बोले थे कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट में हम लोग इनपुट कराते हैं एंड हमें नेक्स्ट स्टेट में उसका रिजल्ट मिलता है. प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं हम कि हम इनिशियल स्टेट पर इनिशियल स्टेट पर जो भी कमांड्स है वो हम अप्लाई करेंगे एंड जो हमारा वो हमारा क्या जनरेट करेगा, फाइनल स्टेट को. तो ये कमांड्स और प्रोसेस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. नेक्स्ट वन है आपका मशीन. सो इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स एंड स्टोरेज टुगेदर with an implementation that cause the state transition determined by the commands. So machine is a set of commands and storage which जो implement करता है हमारे state transition और transitions को by the commands. ठीक है. And the next is storage. So storage is the range and the domain of commands. मीन्स जो भी आपने कमांड्स दिए हैं वो किस रेंज में और किस डोमेन में हमारे अवेलेबल्स होंगे फॉर स्टोरिंग द डेटा. So these are the basic terms and this is specific definition is provided by the author in a standard book. ये स्टार्टिंग की टर्म्स हम दोबारा बता दो. कौन कौन से? ये स्टेट है जो स्टेट क्या होता है? स्टेट और स्टेट ट्रांजिशन. स्टेट क्या होता है, एक हम पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पर हमें स्टोर करवाना रहता है. सपोज कोई हमारे पास डेटा है या कोई इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें स्टोर कराना है, तो हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये हमारा रजिस्टर में स्टोर होगा या मेमोरी में स्टोर होगा. ठीक है. इनिशियली तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी कहाँ पर होती है, मेमोरी में स्टोर होती है.
उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर जो हमारा इंटरमीडिएट या जो रिजल्ट होता है वो हम स्टोर कराते हैं रजिस्टर में, ठीक है। तो वो होती है हमारी स्टेट ट्रांजिशन। क्या होता है कि जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया है ना स्टोरेज ये रजिस्टर और मेमोरी का, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो होता है स्टेट ट्रांजिशन। मीन्स कि कोई सपोज कोई ऑब्जेक्ट को मैंने एक प्लेस पर रखा है, फिर उसकी पोजीशन को मैं चेंज कर दूं, तो वो क्या हो गया, उसका ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक जगह से दूसरी जगह का मैंने जगह से शिफ्ट किया है, तो उसका जो चेंज होगा वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है जैसे हमने मेमोरी से रजिस्टर में भेजा था। रजिस्टर मेमोरी में जो भी हम चेंज करेंगे ना वो हमारा होगा स्टेट ट्रांजिशन, जी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था आपका साइकिल। साइकिल क्या होता है कि जो भी चेंज होता है स्टेट के बीच में, जैसे हम लोगों ने चेंज किया था, बताया मैंने रजिस्टर मेमोरी में जो हम चेंज करेंगे तो वो स्टेट ट्रांजिशन होगा, और इस चेंज को होने में जितना टाइम लगेगा वो होगा हमारा साइकिल। कि इस स्टेट को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में जितना टाइम लगेगा वो होगा हमारा साइकिल, ठीक है। अब हम वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा साइकिल कौन सा होगा, तो हम जो स्टोरेज, जहाँ पे हम लोग जहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे वो हमारा होगा स्टोरेज। तो पहले हम फिक्स करेंगे अगर हमारा स्टोरेज रजिस्टर है तो हम बोलेंगे कि ये मशीन साइकिल होगी, ठीक है। तो हम मशीन साइकिल कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम बोलें कि स्टोरेज हमारा मेमोरी है तो हम बोलेंगे हमारी ये मेमोरी साइकिल कैलकुलेट होगी। क्लियर है। ठीक। और ओके। कमांड वो होता है कि हम जब कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी हम लोग कमांड देते हैं देन उसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो नेक्स्ट स्टेट ही होगा। अगर हम बोले कि एक स्टेट पर हम लोगों ने उसको इनपुट दिया, मीन्स कमांड दी कि चेंज डायरेक्टरी, फिर हम लोगों ने उसे रन किया और उसका आउटपुट आ जाता है, तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर स्टेट में उसे अप्लाई किया और उसने जनरेट होकर हमें नेक्स्ट स्टेट पर हमारा रिजल्ट दिया या आउटपुट दिया। और प्रोसेस में क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेज होती है हम उसमें इनपुट अप्लाई करते हैं, और जो फाइनल स्टेट होती है वहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो जनरेट होता है, ठीक है। एंड स्टोरेज जो होता है कि जो भी हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर एक रेंज होती है, कुछ उसके डोमेन होते हैं जो हम लोग कमांड के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। कि सपोज मैंने मेमोरी का साइज फिक्स कर दिया है कि भाई मेरी मेमोरी का साइज इतना केबी है, सपोज 10 केबी है, तो वो उसकी रेंज होगी, उतना ही स्पेस को वो स्टोर करेगी, है ना। और मशीन क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ कमांड एंड स्टोरेज टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द स्टेट ट्रांजिशन, ठीक है। तो जो भी हमारे कमांड्स और जो भी हमारी स्टोरेज है उनका कॉम्बिनेशन से हम लोग मशीन बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट ट्रांजिशन जो भी है उनको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं थ्रू कमांड्स। ओके। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें? हाँ मैम। ठीक है। बेसिकली देखिए मैंने स्टार्टिंग इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता हो बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो कि भाई प्रोसेस कैसे होता है इंटरनली। तो एक बार जस्ट रिमाइंड हो जाए कि कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है।
ओके, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट रजिस्टर्स, एंड इनकी जो फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं, इम्प्लिसिट रजिस्टर्स कौन से होते हैं, एक्सप्लिसिट रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो सब कवर करेंगे। और अगर टाइम बचा तो फिर नेक्स्ट माइक्रो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा होगा माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। एसीए का पूरा नाम क्या है? किसका? हेलो, फॉर्म क्या मैम एसीए के? किसका? एसीए का एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं ट्राई करेंगे कि वन क्लास में एटलीस्ट वन टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। और आपकी बाकी लैब्स और क्लासेस प्रॉपरली हो रही हैं? यस मैम। डीबीएम नोट्स डीबीएम नोट्स में आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी सारे टॉपिक्स के। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे वो, उसमें सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि पर डे का तो मैं आपको सेंड नहीं कर पाऊंगी, बट फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दूंगी। प्लस मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे यूनिवर्सिटी मतलब फाइनल एग्जाम के पर्पज से जो रहते हैं। तो उस क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस कवर रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो। सिलेबस ही भेज ओके। दो। ओके फिर ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बुक की तो पीड़ा पड़ी होगी मैम।